Hello, Balko. Today we are going to discuss about important questions of science for class 10th, only for UP board. Okay, I will explain the question and answer both, and you have to note that question and answers in your note copy. Okay, because I have no board, that's why I'll just tell you the question and answer, and you have to copy that. Okay, so first of all, we will discuss about chemistry, and after that, physics and biology step by step. Okay, so first question will be write comments on this will be question आपके क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा राइट कमेंट्स ऑन। तो केमिस्ट्री में 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें से 3 टॉपिक दिए होंगे जिन पर आपको कमेंट लिखना है। ओके, तो क्वेश्चन फंक्शनल ग्रुप एल्किल ग्रुप alkane, alkene, alkyne. Okay, so first of all, note the answer of functional group. Atom or group of atom which determines physical and chemical properties of the organic compound is known as functional group. Okay, this will be the definition. Okay, so example: alcohol, aldehyde, ketone, carboxylic, symbol is OH, alcohol हो गया, CHO, aldehyde, COOH, carboxylic, and CO, ketone, that are mentioned in your book. Okay, so next, what is alkyl group? When a hydrogen replaced from the alkane, I'll telling you in simple way how to write. Okay, I have seen that in books and notes complex definition are mentioned. Okay, that's why I'm telling you simple definition in simple words also. So note it. What about you I'm telling? Alkyl. Yes. Okay, alkyl. When a single hydrogen replaced from the alkane, alkyl group is formed. मीन्स एल्केन है जैसे मीथेन से आप एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो वो मेथिल बन जाता है। समझे नहीं समझे? मेथेन इज अ एल्केन, आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया देन वो एल्केन बदल गया, मतलब CH3 और H निकल गया। तो CH4 लिखें, एरो खींचें, उधर CH3 लिखें प्लस H जो निकल गया आपका। ओके, दिस विल बी एल्किल ग्रुप। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्किल ग्रुप इज CnH2n plus 1. Okay, this will be the formula of alkyl group. What about alkane? Alkanes are the saturated hydrocarbons which have general formula CnH2n plus 2. Okay, note the fast. You can pause the video also. That's why I'm telling you fast. It gives substitution reaction. Between carbon, single bond is present. Between the carbons, इथेन है, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो सिंगल होगा, सिंगल बॉन्डेड. ओके, दिस ऑल अबाउट एल्केन. एग्जांपल विल बी CH4, C2H6, C3H8, etc. Okay, alkene. Alkenes are the unsaturated hydrocarbons. They have general formula CnH2n. Between the carbon, double bond is present. They gives addition reaction. Alkanes, substitution reaction. Alkene, addition reaction. This is all about alkene. You have to write it. Okay. Alkyne. Alkynes are the unsaturated hydrocarbons. Their general formula is CnH2n minus 2. Okay. They gives addition reaction. Their geometry is linear. Alkane, alkene, alkyne, alkyl, and functional group. Complete. Next topic. Hydronium ion. What is hydronium ion? Explain with example. Then you have to write when acid dissolve in water. Yeah, when we add the water in acid, don't add acid into water. Have reason. When water add in a
acid. Then acid converted in acid forms by taking a hydrogen from water, hydronium ion. Try to understand, I can't write it. HCl, water. Water gives H plus OH minus. Okay. Acid H plus Cl minus. H जो वाटर का है H प्लस, वो जो एसिड का H है उसके साथ जुड़ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा जो वाटर था वो H2O होता ही है, H3O हो जाएगा, H3O प्लस और Cl निकल जाएगा, तो ये H3O प्लस बना ना, दैट इज हाइड्रोनियम आयन. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट आपसे पूछा था व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन. Okay, those reaction which complete in one direction. Okay, forward direction. All those chemical reaction which complete in unidirection, which are unidirectionally, are known as irreversible reaction, and those which are complete in both direction, which are carry on in both directions, that are known as reversible reaction. That will be reversible reaction. Example are mentioned in your copy and note from there. Okay, so next will be combination reaction, exothermic and endothermic reaction. These are important reaction. You can write that from the note copy, also mentioned there, but I am telling you in simple words. When reaction required to complete temperature and pressure etc., then reaction will be endothermic. If the reaction required excess temperature to complete is known as endothermic reaction, because वो complete होने के लिए इसको temperature चाहिए होता है, ऐसे नहीं हो पाएगी वो reaction, तो वो endothermic हो गया. And those reaction in which energy is released after completion of reaction, that are known as exothermic reaction. बेटा मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, मे भी थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी या फिर बोलने का तरीका थोड़ा आपको टफ लग सकता है, बट इसके अलावा कोई वे नहीं है कि आपको सिंपल शब्दों में समझाया जा सके. बिकॉज यू आर बिलोंग टू द इंग्लिश मीडियम बोर्ड, इट्स मीन यू कैन राइट द आंसर वेल इफ यू आर स्टूडेंट, अ गुड स्टूडेंट. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट हु नो or doesn't know anything about the chemistry or physics. Okay, so now अब आपको मैं बताऊँ कि ये हो जाएगा, कर लोगे pH scale. हाँ, you have to explain the pH scale also. Preparation method of baking soda, preparation method of washing soda, preparation method of bleaching powder, preparation method of plaster of Paris. ये 4 चीज़ें बेटा आपको जरूर पढ़ लेनी है. मैं कंफर्म कह सकता हूँ इनमें से कोई ना कोई 4 नंबर में पेपर में आएगा, 2 रिएक्शंस आएंगी 4 नंबर में. ठीक है, मैं वीडियो के लास्ट में अगर हो सकेगा तो मैं पेज ऐड कर दूंगा वो वीडियो, नहीं तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा क्वेश्चन आंसर्स का. आप रेडी कर लीजिए इस बात को. मैं जस्ट वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके पेपर में बहुत ही जरूरी आ सकते हैं, बाकी इतना सारा सब कुछ आपको पढ़ना है, समझ रहे हैं आप. ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन कर पाएंगे. बेकिंग सोडा प्रिपरेशन हो गया. और एसिड बेस डिफरेंसेस क्या होते हैं, लिटमस पेपर क्या करता है, फंक्शन ऑफ लिटमस पेपर, इंडिकेटर होते हैं ना, इंडिकेटर क्या होते हैं, तो इंडिकेटर्स बेटा आप अच्छे से रीड करेंगे. इंडिकेटर विच टेल्स अबाउट एसिड और बेस. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, when an acid and base react to each other form a salt and water. When an acid and a base react to each other to form salt and water, this is known as neutralization reaction. Okay, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्लियर है, नहीं क्लियर है. HCl एसिड लो प्लस NaOH दोनों को मैच करके एरो खींचो, उधर NaCl और H2O लिख दो, ये हो गया आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन हीट इज रिलीज, ठीक है, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो ऑल्सो कॉल दैट न्यूट्रलाइजिंग हीट. ओके, तो दिस ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऑफ periodic law, Mendeleev periodic law and Moseley periodic law. You have to read from your question bank. Properties of periodic table. Properties of periodic table. This will be 7 marks question. यह क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ periodic properties, ये 7 मार्क्स से क्वेश्चन आता है. ओके, अब आपसे डायगोनल रिलेशनशिप. व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप? डायगोनल रिलेशनशिप
द एलिमेंट ऑफ पीरियड 2 एंड पीरियड 3। पीरियड टेबल देखिए 7 पीरियड है, उसमें से सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो डायगोनली सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। एलिमेंट ऑफ पीरियड 2 एंड एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 शो सिमिलर प्रॉपर्टीज in diagonal manner. This is known as diagonal relationship. जैसे आपने लिखा लिथियम बोरॉन, ओके, लिथियम बेरिलियम बोरॉन, वीडियो शायद कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन, उसके नीचे लिखोगे सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम। तो लिथियम का मैग्नीशियम के साथ जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी, ओके, लिख कर चेक करिए आपको दिखेगा डायगोनली, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वेट अ मिनट, मैं क्वेश्चन की लिस्ट देख लेता हूँ फिर तो मैं समझाता हूँ अच्छे से। हाँ, एडिशन रिएक्शन, ओके, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। आई विल अपलोड द वीडियो ऑफ these questions, okay, because it is very difficult to explain these and mention the reaction, okay, so I'll explain later. So मैंने क्या बताया, ओके, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, सब्स्टिट्यूशन, डिहाइड्रेशन, सब्स्टिट्यूशन, एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन, शापोनिफिकेशन, शापोनिफिकेशन, yes, oxidation and reduction. These are the important reactions. You know the oxidation, those reactions gain of oxygen takes place. Those chemical reaction in which gain of oxygen takes place are known as oxidation reaction. Okay, example mentioned in the copy, note the reaction, okay. Reduction, reduction means those chemical reaction in which loss of oxygen takes place. Those chemical reaction in which loss of oxygen takes place are known as reduction reaction. Note the example from the copy, okay. फिर मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है, ये क्वेश्चन भी रेडी करना है आपको। वन थिंग, ये बात ध्यान रखना बेटा, पीरियोडिक टेबल से जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें आपको एलिमेंट दिया जाएगा, उसका ग्रुप पीरियड, ब्लॉक, जो भी पूछा होगा, वैलेंसी, ये सारी बातें पूछी जाती हैं। आपको ध्यान में रख के निकालना सीखना पड़ेगा। मतलब जैसे कि दे दिया, मैंने कहा एन एलिमेंट एक्स हैव एटॉमिक नंबर 11, फाइंड आउट द वैलेंसी एंड पीरियड ऑफ दिस एलिमेंट। देन एलिमेंट एक्स एटॉमिक नंबर 11 इतना मिला है, हमें डिटेल निकालना है। तो करना क्या बेटा, अब उसको लिखना, जैसे एक्स लिखा 11 है, 2 8 1, पहले 2 फिल करते हैं, फिर 8 फिल करते हैं, फिर 8 फिल करते हैं, ऐसे चाहते हैं हम, पहले 2 फिर 8 फिर 1, 2 8 10 हो गया, और 10 1 11 हो गए। जो 1 फाइनली लास्ट में आया बेटा, वो ये बता रहा है कि हमारा जो ग्रुप है वो फर्स्ट है। और 2 8 1 3 डिजिट हो गई, 2 8 1 इट्स मीन थर्ड पीरियड का है। कौन सा बेटा, थर्ड पीरियड का है। इस तरह आप ग्रुप फाइंड आउट कर पाओगे। बेटा ध्यान रखना, अगर बाहर जैसे मैंने लिखा, अब मैं कहता हूँ एन एलिमेंट हैव एटॉमिक नंबर, सॉरी हैज एटॉमिक नंबर 14 नहीं 14 ही कैसा, 6, ओके, एटॉमिक नंबर 6 है। डिटेल बताओ इसकी, ग्रुप और पीरियड बताओ। देन आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है, तो 6 एटॉमिक नंबर है आपका। तो ऐसा करिए आप 2 फिर कॉमा कितना 4, 2,4 लिखा। इस बार हमारे पास 8 है नहीं तो हम भर नहीं पाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, एटॉमिक नंबर कितना 6, हाँ, तो 2 भरेंगे पहले बॉक्स में, फिर 8 भरना होता है, लेकिन मेरे पास बचे कितने 4 को मैंने भर दिया। अब उस जो 4 दिख रहे हैं ना, उनको देखकर बताया सकता है कि ग्रुप 14 है। बेटा यहाँ गलती मत करना, बस 1 आए तो फर्स्ट ग्रुप, 2 आए तो सेकंड ग्रुप, बट थर्ड आए लास्ट में तो 13 ग्रुप, 4 आए तो 15 ग्रुप, 14 ग्रुप, 5 आए तो 15 ग्रुप, 6 आए तो 16 ग्रुप। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक। तरीका ही बता रहा हूँ आपको रटने का, एक सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। अदरवाइज ये आपके रिकमेंडेशन पे रहेगा, आपको अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया, मैंने क्या बताया, हाँ ऐसे ग्रुप पीरियड फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। तो दिस वाज द कार्बन एंड आप यू नो दैट कि पीरियड टेबल में ये आपका नॉन मेटल जैसा बिहेव कर रहा है, उधर 14 ग्रुप का है। तो इस तरह ग्रुप पीरियड निकालना बेटा आपको आना चाहिए।
सो इस तरह क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया भी दे दे रहा हूँ, क्योंकि शायद मुझे कोचिंग जाने का समय हो रहा है, तो इतनी जल्दी वीडियो तब बड़ा नहीं बना पाऊंगा, रात में फिर से बनाऊंगा अगर आपकी रिकमेंडेशन है, अभी मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्टरीज वेन्स में डिफरेंस बेटा आपको आना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स, वर्क ऑफ लीवर, वर्क ऑफ किडनी, वर्क ऑफ गॉल ब्लैडर, वर्क ऑफ पैनक्रियाज। ओके, कुछ नया, बट लीवर का जरूर पढ़ें, फंक्शन ऑफ लीवर आपके पेपर में आते हैं। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट द्वारा वेपर के फॉर्म में वाटर को लॉस करना ही ट्रांसपिरेशन होता है। जैसे जैसे हवा बढ़ाओगे एयर बढ़ेगी, ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा। ओके, पढ़ना रेट अफेक्टिंग, सो ये आपको पढ़ लेना है। इफ लॉन्ग क्वेश्चन, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्क्रीटरी सिस्टम, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर जरूर पढ़ें। पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन फॉर मार्क्स, न्यूट्रिशन। और तुमसे अगर पूछा जाता है, नॉर्मली कह देते हैं लेमार्क और डार्विन, लेमार्किज्म डार्विनिज्म तुम्हारे कोर्स में नहीं शायद, अगर है तो बेटा डिफरेंसेस जरूर याद करो इन दोनों में। लेमार्किज्म और डार्विनिज्म में डिफरेंसेस बहुत मैंडेटरी हैं, आपको याद ही करने हैं, ठीक है। दिस ऑल अबाउट बायोलॉजी। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कैसे, अभी ऑब्जेक्टिव याद कराऊंगा मैं आपको, मजाक मजाक में याद कराऊंगा, अभी तो नहीं बताऊंगा, इस वीडियो नेक्स्ट अपलोड करूंगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे गलत ना हो। डोंट थिंक आप कर ही लोगे, हाँ, लेकिन फिर ये मत सोचो कि तुम कर लेते हो, मैं बताऊंगा अच्छे से। उसके बाद फिजिक्स में बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाइए आप लोग, फिजिक्स में, और वहाँ बायोलॉजी में विलाई जरूर पढ़ लेना, फंक्शन ऑफ विलाई आल्सो। ओके, ठीक है। फिजिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन बेटा इलेक्ट्रिक मोटर, डायनमो, 7 मार्क्स में क्वेश्चन इनसे दोनों से जरूर आएगा। इलेक्ट्रिक मोटर का वर्क होता है, प्रिंसिपल इस है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, इलेक्ट्रिक मोटर, और जो डायनमो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ओके, सो ये आप डिफरेंस पढ़िएगा। मैग्निफिकेशन पढ़िएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़िएगा, मैग्निफिकेशन पढ़िएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़िएगा, बाय-सेवर्ट लॉ पढ़िएगा, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़िएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट पढ़िएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लाइट वाले में आ जाओ, थोड़ा सा लौट सा, रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लेना, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल लॉ पढ़ना है आपको। फिर हाँ, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये पढ़ना है तो आना ही आना है। ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ओम लॉ, ओम्स लॉ है ना, लिमिटेशंस ओम लॉ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल, वेयर दे आर यूज्ड, लेंस रूल, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पावर, रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट। जो क्वेश्चन ज़्यादा बार प्रैक्टिस किया गया, अनसॉल्व, विद्या, अनिल, जो भी है आपके पास, की प्रैक्टिस करिए अच्छे से, जो क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया है। ओके, जो स्टूडेंट जानते हो तो बता ही रहा हूँ मैं उनको, अगर जो नहीं जानते वो प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया बस उसी को पढ़े, ये दिमाग मत लगा इस बार नया क्वेश्चन ये आ सकता है, जो ज़्यादा पूछा जा रहा है उससे प्रैक्टिस करें आप लोग। ओके, फिजिक्स में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। और रिलेशन बिटवीन द फोकस एंड रेडियस ऑफ मिरर, वो कॉन्केव हो सकता है, कॉन्केव कॉन्वेक्स हो सकता है, तो F = R/2 आपको रीड कर पढ़ लेना आपको। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर इन यूज सेविंग एंड सोलर कुकर, डॉक्टर, डेंटिस्ट, दे ऑल्सो यूज द कॉन्केव मिरर। सो ये यूजेस आपको अच्छे से पढ़ना है। पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ना है आपको, पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ने हैं आपको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको जो बताया केमिस्ट्री फिजिक्स के, इन क्वेश्चन को किसी प्रकार आप लर्न कर लो, अच्छे से मजबूत कर लो, पेपर में जो आएगा आप कर पाओगे। न्यूमेरिकल उस पर बेस्ड मुझसे जितना होगा मैं भी वीडियो अपलोड करूंगा, आपकी रिकमेंडेशन की जरूरत रहेगी, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें वीडियो को। यूपी बोर्ड के सभी बच्चों में ये बात पहुंच जानी चाहिए, है का? तो मैंने हिंदी में भी बता दिया बेटा, इंग्लिश में भी बताने का प्रयास किया है, क्योंकि इतना सब कुछ है, थोड़ा बता पाना डिफिकल्ट की थोड़ी सी कमी है। इफ़ यू आर अनेबल टू राइट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस, टेल मी इन कमेंट बॉक्स, ओके, आई विल रिप्लाई एंड ऑल्सो गिव द आंसर दैट यू वांट। हाँ, तो ये रहेगा आपका क्वेश्चंस आंसर्स। तो फिर मिलते हैं हम लोग
अच्छे पेपर करने का प्रयास करिए, पूरी तैयारी से लगे रहिए, अच्छा करिए आप लोग, हम तो यही चाहते हैं। बाकी नाम रोशन करिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट शेयर तो आपका कर्तव्य है। बाकी जो इंपॉर्टेंट अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप हमसे। ओके।